स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो आज के एजेंडास देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज के एजेंडा है फर्स्ट टेबल, सेकंड इट्स टेबल्स एप्ली tables implementation, and the third is your homework. Okay, this is something that अगर तुमको किसी भी पॉइंट पे लगे कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुरंत मेरे को बोलना, क्योंकि अगर तुमको एक चीज समझ नहीं आया दूसरा से समझ में आ गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है ये। ठीक है, पहले तो मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट वन, टेबल इज अ टैग और यू कैन से एलिमेंट। ओके, सो whenever anyone asks you what do you mean by table, you simply say table is a tag or a element which is used to represent data in tabular form. Okay, so it's simply when we are using table tag, we are trying to represent it in a tabular form. So the tags which are very much important for these tables are, first is table tag, and it's not a auto close tag, so you have to close it. Second, it is the first one. Second is the tr, which is table row, which is also a not auto closing tag. Third is td. What do you mean by td? नाम से क्या समझ में आ रहा है? td का मतलब क्या है? कोई बोलेगा? हेलो, एनीवन वांट टू से समथिंग? Table division. टेबल Division. ना, टेबल डेटा. ओके, so this what we are saying, table row, and this is what we are saying, table data. So then you will ask, how we are giving the columns, how we are defining the columns. Okay, basically in table what we do is, whenever we write td, sorry, not td, it's tr. When we are look for an example, if we are want to create this table, okay, think this is a table. Here is here it is written name, and it's age x y z a b c, and it's 1820. Okay, 1 second. Same that I forgot to inform you before. Chalo. So if you see something, we have two columns, three rows. Okay, so when we are using tr, we can do the thing is, this is tr,
This is tr, sorry, let me use a laser. This is two columns, and if you can see, this is a td, this is the td, and if we are doing something like tr, 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 this will be the rows, and td for this. Are you clear with the concept, like how we are creating the td, table data? Whenever we are writing like this tr, inside that we are writing td, and in td we are writing two things: name, then we are closing it, then again td, name is age, again we are closing it, then we are closing slash tr. This will create your first, this will create your first row. Is it clear, guys, how we are creating a row in a table? Okay. Yes. Chalo. So let's go to a more complex thing. Till now, what we know, table, under this table tag, we are going to write tr. Under this tr, we are going to write td. Okay. But in table, we know we have a heading tag, we have a body. Is it true, guys? Is it true? Yes. Okay. So, with this respect, we also have something called, in table with something called t head and t body. This also are not auto closing tag, so we have to close it when we are using, whenever we are using. Okay. So, what are the things we need to write? This row. Let's not do this. Let's take something else. Let's build the same table here. Its name, its age, and its A B C X Y Z 21 20. Okay, if we can say this is the T head, can we say like this is the T head and this two are the bodies? Is it true or false? Is it true or false? Is it true, right? Okay, so we can write like table, then we can write T head. Inside the T head, we can like this TR. In TR, inside the TR, we can write like TD. Inside the TD, we can write name slash TD. Then we can write TD age. Oh, and slash TD. Then TR, then slash T head. Then we can just close table tag. Before closing table tag, we can just write the body in the same way. Is it clear when how we are writing our code? It's also different. When somebody is also reading the code, he can understand what is happening in the code. Okay, it is a way to write code. जब तुम एक HTML लिखोगे, अगर तुम ऐसे लिखते हो, when you are writing a code like this, what will they think? This is a row, this is a normal column, this full thing is under a table body, but we want to write in a hierarchical way. So what we do is we use T head for this and T body for both of this. Is it clear up to this? Is it clear? Yes. Okay. If it is Yes. clear, so we are going to build something. Okay. We are going to build a normal thing like normal table. Let's go and build it in the VS Code. Okay.
चलो थोड़ा बिल्ड करते हैं. 1 second. चलो 1 second. हाँ, let's go to VS Code, and before starting this, I'm starting my, as you can see, there is not very cool thing here. Okay, whenever you are doing like this kind of thing now, just do one thing. Just go here, and I can just do like this. That will be easier for you to understand what happening actually. Okay, let's make it table. And okay, what I have said, what is the tag that I will be using here? Anybody? Anyone? Hello. Table tags. Okay, table tag. Okay. So in table tag, I'm just giving one style to like have a good visualize. Okay, which is border show one. Okay. अरे यार ये ऑटो कॉम्प्लीट की ऐसी तैसी तो कोई बहुत दिक्कत हो रही है. चलो, as I said, we are creating first without no T head and T body. So first we are going to write TR. Inside the TR we are going to write TD, which in my case I have written name, and this is the same thing I will write in the like age. Okay, let's see. As you can see, okay, as you can see, it's there. Okay, and one thing. Let's focus on this. Let's just focus on this. So as we can see, we have name and age. After this, we are going to give some, okay, and this is into 2 and 3D into 2. This is the some shortcuts you can use, but as you are starting with HTML, just don't do this. If you are comfortable, you can do this. Okay, X, Y, Z and T creative. So our table is created. सबको समझ आएगा कि कैसे हम टेबल बना रहे हैं. Everyone, you are getting it how we are creating this. Hello everyone. Yes, please. Okay. चलो, तो एक काम करते हैं. मैंने जैसे बोला कि इसको, इस चीज को हम क्या करेंगे, टी हेड एंड टी बॉडी के साथ करेंगे. ठीक है, टी हेड, टी हेड के अंदर मैंने क्या बोला, ये दो चीज आएगा, एंड टी बॉडी के अंदर ये दो चीज आएगा. Is there any change you can notice over here? Is there any change?
Anyone? No. No, right? But when you inspect this, okay, let's just come up with this. Um, reset. And when we are going to do this, okay, let's go myself. And when we are going to do this, let's go here. And when you're just now you can see we have two elements under the table, which is T head and T body. These two are now differentiable. Okay, with this we can do what? We can do simple JS. Okay, when we are going to learn JS, we can use this very efficiently when we are using in table T head and T body. Okay, there is also a thing which is called as, I guess I forgot the exact thing, footy foot, which is footer, which can do very good thing. Like if you want to do this marks and if you want to see like this TR, look, now we have three things. You are getting why we are using this? Hello everyone. भैया ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया हमको। टी फोर्थ फुट, वाला जो था फुट उसकी। वाला समझ नहीं आया ना? चलो देखते हैं। अगर एक सेकंड, अगर तुम ध्यान से देखोगे, टी फुट, टी फुट मतलब क्या समझ में आ रहा है तुमको? कि टी फुटर है। फुटर मतलब क्या है? हमारा जो नीचे होता है लोएस्ट पॉइंट। एंड टी हेड मतलब क्या है? हेडिंग्स है। अगर तुम अच्छे से देखोगे, इफ यू आर गोइंग टू नोटिस दिस, look at this. If we are building like this, name and marks, सोचो ABC को 24 मिला है, BCD को 21 मिला है, ठीक है? दिस इज टेबल header, which is also known as T head. This too is table body, also known as T body. And when we are adding one more column, which is total marks, ठीक है? Total marks, and this will be 4 5. Okay, this can be a table footer, which is T footer. Now you are getting what I want to say you, how we are differentiating each and every element in a HTML. समझ आ रहा है या वापस समझाना होगा? समझ गए। समझ गया ना? सब समझ गए हो? मैं एक बार और बोल दीजिए। एक बार और, ठीक है, चलो पहले से समझा। So what is table tag? Table tag is something when we want to represent something, just like our Excel. In our Excel, what we are representing? Data, right? Think we have a data of someone who is having, like our teachers have our timetables, right? Timetable है ना? बट अगर उसी सेम टाइम टेबल को अगर हम अपने वेबसाइट में मतलब रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तब हम टेबल यूज करते हैं। सिंपल, when we want to use something, some data inside a table format, or we want to divide two things in table row, we can also write some elements also.
डेटा देना है ऐसा बात नहीं है, हम डेटा की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स अस टू डू दिस थिंग। ओके, राइट। अगर तुमको एग्जांपल देखना है, एग्जांपल दिखाता हूँ एक अच्छा सा। वो इधर था ना, प्रैक्टिस सेट। अगर तुम मेरा ये वाला देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ये देखो ये वाला मैंने कैसे किया है, टेबल से किया है ना। आर यू गेटिंग इट? दिख रहा है? हेलो? हाँ भैया। हाँ चलो देखो, अब देखो टेबल रो के अंदर मैंने क्या किया है, अपने इमेज को डाल दिया है, ये वाला इमेज को डाल दिया। फिर इसमें क्या किया है, इस डेटा में क्या लिखा है, मैंने एक हेडिंग लिखा है, एक उसके साथ एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टेबल। You can do this, like differentiating two elements inside one row. ये एकदम बेसिक है। इसके बाद अब जब हम CSS सीखेंगे तब इसको यूज नहीं करना होगा इतना, बट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर टेबल। सो अगर तुमको और भी मतलब लाइक इफ यू वांट टू नो मोर, so as we know, table is not a auto close tag, we have to close it before using. Inside table we are going to write tr, then we are going to write td. tr is table row and td is table data. Table row is what? This is table data. Table, sorry. This is table row. Okay. And what are the data? td. Inside one table row, we have two data. So inside one tr, we are going to have two td. So to like make you like, okay, we have two rows, two columns. Okay, we are not specifying the columns, right? We are just specifying the row with the data. Now if we want to know, if we want to say, I don't want to give total, but we want to have the total price in the footer. Okay, so here we can see there is nothing I have written over here, but here is the 41. You can just, if you want, like तुम इसको इधर ही चाहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते कि ये वाला इधर आएगा, तो तुम ये कर सकते हो, लाइक एक वाला एक टीडी लिखो, उसको छोड़ दो, उसके बाद वाला लिख दो। दिस इज अ सिंपल थिंग। अगर तुमको और मतलब कुछ और डाउट है तो बताओ, एनीथिंग मोर डाउट यू हैव, क्योंकि इसके बाद वाला और टफ है टू अंडरस्टैंड। भैया अगर हम लोग को नेम और एज को हाईलाइट करके लिखना है जैसे बोल्ड लेटर्स में तो वो कैसे करेंगे? टीडी में स्टाइल डाल देना, या क्या करो। बोले भैया, फिर से रिपीट कीजिए। ये जो टी हेड है, इसमें अगर स्टाइल डाल दें, विच इज फॉन्ट विथ विच इज बोल्डर। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला है, चेंज दिख रहा है नित्या? चेंजेस दिख रहे हैं कुछ? हाँ भैया। ये थोड़ा हाँ। बोल्ड है, ये थोड़ा बोल्ड नहीं है। तो बोल्ड ये सब तुम कर हाँ। सकते हो स्टाइल के साथ, ठीक है। यू कैन डू दिस विथ सिंपल स्टाइल्स, ओके। और अगर तुमको बॉर्डर नहीं देखना है, चलो, तुमको बॉर्डर देखना ही नहीं है, तो तुम ये कर सकते हो, लाइक ये देखो, बॉर्डर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तुमको बस नेम मार्क्स ये सब दिख रहे हैं। समझ गए सब? एवरीवन अंडरस्टूड? लाइक हाँ भैया। चलो हाँ। चलो। थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, टेबल एग्जांपल।
थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अरे हमको प्रैक्टिस का चाहिए रे पापा। चल इमेजेस से बनाने का ट्राई करता है। ओके, लेट्स हैव सम क्विक थिंग। ओके, ये वाला हम बनाएंगे, ठीक है। ये वाला हम बनाएंगे, ये वाला हम बनाने का ट्राई करेंगे इसके बाद। बट फॉर नाउ लेट्स हैव दिस वन डन। हमको ये बनाना है। कोई बना पाएगा अभी मेरे सामने स्क्रीन शेयर करके? एनीवन who is willing to like volunteer me to build this? Srijit, do you want to do this? Srijit, are you there? Um, করবি? Then screen share কর আমি। Then do the screen share. Srijit, I have shared the exact thing you have to do in our WhatsApp group. So let's volunteer me and let's see what you have learned. This can be anyone, guys. This can be any one of you, as you all don't have that laptop with you. Nitya, do you want to try? चलो श्रीजित ने स्टार्ट कर दिया। Then Srijit start the thing. Nice, sir. You are practicing. Good. So what I have shared you in check it in WhatsApp group. Okay. Go to WhatsApp and check the thing. Go WhatsApp and check. So that details one, leave that part and do the other things. first name, last name, and age will be the header part. Yes. Srijit, just create the three things inside a row. Okay. Okay. You are just writing in the data part, so it will not show like that what you are want to show. Wrap the TDs inside the TR. Just write TR, just you have written in the first one. First name, last name, age. Okay, okay. ये टीआर বানানো করব। না না, আমি বলছি টিআর এর মধ্যে টিডিস গুলো লেখ। টিআর এর মধ্যেই তো লিখছি মানে। না ও আচ্ছা আর একটা টিআর লাগবে। Yes. For each and every row you have to use a TR. Okay. Just copy paste করে আনসাইডে লিখে দাও একটা এন্টার মার, অ্যাঙ্কারের মধ্যে এন্টার মার একটা।
এবার নিচে দেয় টিডি গুলোকে কপি করে ওখানে পেস্ট করে দেয়। তুই ট্যাব টিপতে পারিস বাই দ্য ওয়ে লাস্ট দুটো টিডির জন্য। Go live. Okay. You are good. Okay. It's okay. ठीक है। বাকিগুলো করবো। না ঠিক আছে, বাকিগুলো ঠিক আছে। ওকে ফাইন। সবাই বুঝতে পেরেছিস ও কি করলো? ওকে চলো। So let's go to the next part of this table thing. And if you understand this, it will be easier for you. And if you don't understand this, it will take time. But you will understand at last, okay? So basically we have to build this. তো এখানে ফার্স্ট আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ কি আসছে? এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে একটা জিনিস আছে যেটা তিনটে রো মিলিয়ে করছে, রাইট? আবার এখানে একটা জিনিস আছে যেটা দুটো কলাম মিলিয়ে করছে, এটা চারটে কলাম। তো এটা আমাদেরকে বানাতে হবে। কারোর কাছে কোনো আইডিয়া আছে কিভাবে করব? কেউ কোনো আইডিয়া লাগাতে পারছিস যে লাইক আমরা এটা কি করে বিল্ড করবো? টি বডির মধ্যে টি বডি যদি আবার লাগিয়ে দিই। টি বডির মধ্যে টি বডি? না না, এরকম ভাবে নয়। বাট টি বডির মধ্যে টি বডি কি করে লাগাবি রে? চেঞ্জ না কি না হবে না হবে না। চেঞ্জ কি করে হচ্ছে? চেঞ্জ তো হচ্ছে না। ओके ठीक है, भैया একটা एग्जाम। हिंदी। हाँ हाँ, नहीं वो बोल रहा था कि टी बॉडी के अंदर टी बॉडी, तो मैं वही बोल रहा था कि टी बॉडी के अंदर टी बॉडी कैसे हो सकता है। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं। देयर आर टू टर्म्स which are going to be your attributes to the table tag. Sorry, not table tag. It's going to be the attribute for your tr tag or td tag, okay, which is row span and which is call span. What is this do? We have to understand that first. Okay. So basically, in TD, when we use row span and when we use TD call span, what happens? We have to learn this. Okay, we have to learn this. If we take simple example of row span or column span, what is row span basically? रो से तुमको क्या समझ में आ रहा है? रो स्पैन क्या हो सकता है? कोई बोलेगा रो स्पैन से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि हो सकता है क्या? नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होगा। हाँ। आर क्यों? আর কেউ ট্রাই করবি? एनीवन? कोई और ट्राई करेगा रो स्पैन से क्या होता है? एनीवन विदाउट गूगलिंग इट? ओके, सोचो हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास दो थिंग, दो दो हमारे पास दो प्रॉब्लम थे। अरे यार हो जा यार।
बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, हमारे पास दो प्रॉब्लम थे, एक था ये वाला और एक था ये वाला। चलो इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अगर देखो इधर नेम है, इधर क्या समझ में आ रहा है, हम इस इधर क्या कर रहे हैं, कॉलम को स्पैन कर रहे हैं, ये हम दो कॉलम को मर्ज कर रहे हैं, तो हमारा कॉल स्पैन दो हो जाएगा। एंड हियर वी विल राइट टू, इससे हमारा नेम इधर इतना हो जाएगा। और सोचो ये इधर दो है, तो रो स्पैन अगर टू होगा तो ये रो स्पैन का होगा, रो स्पैन, एंड दिस इज कॉल। You understood what I am trying to say you? Do you understand like row span क्या है, call span क्या है? बाकी हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्योंकि थियोरेटिकली उतना समझ नहीं आएगा। रो स्पैन, कॉल स्पैन, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो इन तुम जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, विच इज़ अ गुड ऑप्शन टू सेल्फ लर्निंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन देखो, अगर तुमको फिर भी समझ में नहीं आया तो ग्रुप में एक बार और एक बार लिख देना, या क्लास में ही पूछ लेना कि मेरे को ये समझ नहीं आया था भैया, मेरे को और एक बार समझा दो, ठीक है। चलो थोड़ा देखते हैं कॉल स्पैन ये क्या क्या होता है ये। भैया हाँ बोलो। भैया हमको नहीं समझ में आया रोज पेन और वो। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं कि मैं ये सेम चीज़ बनाऊंगा। ठीक है, ये सेम चीज़ बनाऊंगा विथ समथिंग समथिंग, ठीक है, मैं नाम सेम नहीं रखता। ठीक है, पहले देखो हमारे पास कितने रो है, एक दो तीन, तीन रो है। डेटा कितने हैं, एक दो तीन। टेक्निकली देखा जाए तो इधर डेटा कितने हैं, एक दो, ये तीन होगा, तीन डेटा है, चार डेटा है, चार डेटा है, तीन कॉलम है। ठीक है, टी आर इंटू थ्री एंड टी डी इंटू। चलो बट हमारे में पहले में क्या होगा, हम इसको हटा देंगे, इधर लिख देंगे नेम, एंड इधर हम कॉल स्पैन क्या करेंगे, कॉल स्पैन को टू करेंगे। अगर हम इधर देखें, ओके तुमको बॉर्डर देखे दिखा देगा, बॉर्डर, बॉर्डर वन करता है। चलो, और इधर अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हमारा ये वाला नहीं होना चाहिए था, इधर एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, और इधर रो स्पैन, रो स्पैन लिखता हूँ, इसको कॉल स्पैन लिखता हूँ, और इधर मैं रो स्पैन दूंगा टू, और इधर मेरे पास एक ही डेटा होना चाहिए था विच इज ए बी सी। चलो देखते हैं ये क्या देता है मेरे को आउटपुट। क्या तुम लोग को सेम दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है, ये वाला डिजाइन मैंने इधर बना दिया है। अब समझ आया कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या करता है, नित्या? नहीं भैया। नहीं समझ में आ रहा? चलो थोड़ा समझाते हैं, बाकियों को समझ में आया कि सेम प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है बट थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा तो। सो बेसिकली रो स्पैन मतलब क्या समझ में आ रहा है नित्या और चंद्रिमा या कोई भी? रो स्पैन मतलब हम रो को स्पैन मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो रो स्पैन से समझ में आ रहा है कि हम रोज को स्पैन कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, और मेरा रो स्पैन टू है फॉर दिस डेटा, तो क्या होगा, सिंपली ये दो सेल ऑक्यूपाई कर लेगा। दिस आर द सेल्स राइट, दिस आर द सेल्स। नित्या इधर तक हाँ समझ में भैया। आया नित्या? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ चलो, भैया। ठीक है। तो
जहां तक मेरे को दिख रहा है, अगर रो स्पैन होगा तो मेरा फॉर दिस दिस कॉलम, फॉर दिस कॉलम रो स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। रो स्पैन करेंगे तो ये वाला जो सेल था, ये दोनों मिक्स होके एक बन जाएंगे। रो स्पैन क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। अब भैया अगर रो स्पैन के अंदर हम कुछ नहीं लिखते तो वो मर्ज होके एक हो जाता है। रो स्पैन के अगर हम मतलब नंबर ऑफ सेल देते हैं, ये जो है ना, अगर वहां 2 दे देते हैं, रो स्पैन में अगर हम 2 लिखते हैं तो अरे 2 सेल्स बन जाएगा। ये 2E था, ठीक है। अगर 2 लिखेंगे तो ये 2 सेल ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर इधर 3 होता और इधर और एक रो होता तो ये उसको भी ऑक्यूपाई कर लेता, अगर उसका वैल्यू 3 है तो। अच्छा। हाँ, अब ठीक है, समझ अब गई। समझ में आ गया। चलो रो स्पैन तो हाँ, समझ आ गया, अब कॉलम स्पैन देखते हैं। हाँ। कॉलम स्पैन में क्या है, 2 है वैल्यू, और इधर दो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 ही हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम 2 नंबर दे रहे हैं, इट्स अ सेल नंबर, मतलब हमको कॉलम में से फॉर दिस वन वी आर डूइंग फॉर दिस वन, हम कॉलम में से इसको तो हटा रहे हैं। भैया हम लोग को फिर स्पेसिफाई करना होगा ना कि फर्स्ट रो के लिए हम कॉलम स्पैन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे लिखना होगा ना ये। देखो अब डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऊपर। मैंने इधर क्या किया था, टू मेक दिस थिंग, मैंने क्या किया, रो स्पैन ऊपर लिखा था, मतलब सेकंड रो বা पे। যদি তিনটে কলাম থাকে আর যদি মানে দুটো কলাম স্প্যান দুই লিখি তাহলে কিভাবে হবে? লেফট সাইড থেকে দুটো মার্জ হবে না রাইট সাইড থেকে দুটো মার্জ হবে? अरे एक बार बोल क्वेश्चन। মানে কলাম ধরো তিনটে রয়েছে কিন্তু কলাম স্প্যান 2 লিখলাম তাহলে মার্জটা লেফট সাইড থেকে দুটো কলাম মার্জ হবে না রাইট সাইড থেকে দুটো কলাম মার্জ হবে? फर्स्ट थे দুটো मर्ज होगा, लेट्स सी मैं नित्या ये पूछ रही थी कि अगर हमारे पास 3 कॉलम है तो कौन से साइड से होगा, ठीक है। चलो टीडी करके देख लेते हैं, एज नॉट स्टार्ट, ये देखो समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नहीं भैया, हमको नहीं समझ में आया ये रु, वाली चीज। रुको एक बार नंदिता से पूछ लेता हूँ। नंदिता, यू गेट योर क्वेश्चन, लाइक व्हाट्स हैपनिंग? না ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না এটা। एग्जैक्टली रोस्पैन स्टार्ट को, मतलब नित्या ये पूछ रही थी कि रोस्पैन एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर हमारे पास 3 कॉलम है, अगर हमारे पास 3 कॉलम्स है एंड आई वांट टू डू दिस, अगर कोड में कुछ ऐसा लिखा है, सोचो ये एज है और मैं एज, ये वाला एग्जांपल से नहीं समझा पाऊंगा। हाँ चलो, अगर मेरे को ऐसा कुछ करना है, नंदिता यही पूछ रही थी ना, एग्जैक्टली मतलब लेफ्ट से अगर करना है ऐसा हाँ कैसे हाँ होगा। हाँ हम जिस डेटा से, सोचो अगर 3 डेटा है ना, टीआर टीआर के अंदर कितने डेटा है, टीडी 3 है। समझ, ये यहाँ तक समझ में आया कि अगर बस हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अगर इस वाले को हम लिखते हैं कॉल स्पैन 2, ये कौन सा है, कौन सा डेटा है नंदिता और नित्या, कौन सा डेटा है ये? सेकंड वाला सेल का भैया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस वाले का है। तो हाँ, इसका अगर मैंने कॉल स्पैन 2 लिखा है, सॉरी, तो क्या होगा, इस वाले सेल से स्टार्ट होके इसका सेकंड वाला सेल ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। समझ में आया? तो थर्ड वाला
थर्ड वाला फिर शिफ्ट हो जाएगा भैया, फिर थर्ड जो थर्ड थर्ड वाला था। वाला क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा, ये वाला एम्प्टी रहेगा, क्योंकि बाकियों में तो मेरे पास तीन ही डेटा है। हम्म, समझ में आया? जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस भी डेटा से स्टार्ट कर तो रहा हूँ, डेटा डेटा शिफ्ट नहीं होगा भैया। डेटा शिफ्ट नहीं होगा। डेटा तो शिफ्ट ही हो रहा है ना। ये थर्ड वाला ये थर्ड वाला जाके इधर लग जाएगा, इधर। अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली देखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ द डेटा शिफ्ट्स। चलो इसको हटा देता हूँ, एक ही रो के लिए देखते हैं, ठीक है। टी आर लिखे, ये वाला लिखा है, ठीक है। ओ सॉरी, टी एच। अच्छा, टी एच लिखोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। मैं इस वाले रो के लिए क्या चाहता हूँ, कॉल स्पैन 2 हो जाए। तो ये वाला मैं लिखूंगा कॉल स्पैन 2। तो ये क्या होगा देखो, अगर मैं इधर कुछ और भी लिख दूं, हीरो कुमार एंड दिस विल बी 21। ये देखो, समझ में आ रहा है नित्या कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है? हाँ। हाँ तो भैया बस हम वही पूछ रही थी कि वो 21 एज में नहीं जाएगा शिफ्ट होकर, नहीं। जैसे अभी लास्ट नेम में ही कुमार और 21 दोनों आ गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारा अभी के लिए ये है, ठीक है। जब भी मैं इधर एक कॉल स्पैन लगा रहा हूँ, मतलब क्या है, इधर तो एज था, इधर तो एज था, वो क्या हुआ, वो क्या किया इसने, शिफ्ट करके ये दो कॉलम का स्पेस ले लिया इसने। ये वाला दो का वो से स्पेस ले लिया, और इसके अंदर, एज के अंदर जो था ये शिफ्ट होके लास्ट नेम के अंदर आ गया। इतना समझ में आ रहा है गाइस? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ भैया। भैया तो बोलो। अगर हम लोग को 21 को भी शिफ्ट करना है तो उसमें भी कॉल स्पैन लगा देंगे तो वो एज के पास आ जाएगा। सिंपल, इधर कॉल स्पैन और एक बार लगा देंगे तो ये इधर आ जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है, जनरली हम कुछ और काम के लिए यूज करते हैं। अभी के लिए इतना काफी होगा। इतना समझ में आ गया तुम सबको? हाँ। एक सेकंड। हाँ। अच्छा, तुम लोग को जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए ना, मैं ये वाला मेरा वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। इधर जाना, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना, इधर जाके तुमको सब कुछ मिल जाएगा जितना भी तुमको चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है। बस मेरे को एक चीज चाहिए था, ये देखो, ये वाला कर पाओगे ना तुम सब अब? ये वाला कर पाओगे गाइस? হ্যাঁ পারবো কিন্তু ফুড মেনুটা পারবে। কিভাবে লিখতে হবে ওটা পারবো না। ओके, फूड আর मेनू এই का। লেখাটা কিভাবে यस বলতে यस হয় यस यस এ यस, হচ্ছে करेक्ट বুঝতে करेक्ट হবে। करेक्ट करेक्ट। फूड मेनू, जस्ट गो हियर एंड राइट दिस कैप्शन, एंड कैप्शन के अंदर लिख दो स्टूडेंट डिटेल्स, सॉरी, और ये ऊपर आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है ये वाला फूड मेनू? हाँ। जस्ट एक कैप्शन बोल के एक टैग होता है जिससे हम ये कर सकते हैं। चलो, एक टेबल है इधर, मैंने एक टेबल दिया था, ये रहा, दिस वन, ये वाला बनाते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला बनाने के लिए हम क्या देख सकते हैं, हाँ, इधर आइटम को कितना मिला है, 2 रो मिले हैं, और प्राइस को क्या मिला है, 2 कॉलम मिला है, ठीक है। समझ गए सब गाइस? बोलो, हाँ वो यही है ना? चलो बनाते हैं इसे। तो हमारा कैप्शन क्या है, फूड मेनू।
फूड मेन्यू एंड हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। टी हेड, फूड आइटम्स की जगह आइटम, इसको हम देंगे, टेक्निकल देखा जाए तो ये रो है, ठीक है, ये रो है, तो रो स्पैन 2 एंड प्राइस को कितना कॉल स्पैन मिला है, कितना मिला है कॉल स्पैन 2, ओके 2। तो ये वाला हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुमको अभी। फिर हम क्या करेंगे, टेबल हेड तो हट गया, ठीक है, टी हेड, अब टी बॉडी लिखते हैं। सॉरी, टी हेड के अंदर और एक भी चीज आएगा, क्योंकि अगर देखो ये आइटम के अंदर ये दो भी तो तुम्हारा हेड ही आ रहा है ना, तो हम इधर क्या करेंगे, एक और टी आर बनाएंगे, टी आर के अंदर टी एच से इधर आई एन आर लिखेंगे, टी एच से हम यूएसटी लिखेंगे। समझ गए सब गाइस? मैंने इतने इतने कोड में क्या किया है, नित्या समझ में आ रहा है या दिक्कत हो रहा है? हाँ, आ रहा है ना समझ समझ में? गए। समझ गया ना? ओके। हाँ, अब देखो मेरा तो मेरा पूरा काम ही हो गया ये दोनों का। अब तो ये तो इजी है, ये तो इजी है, लिखते हैं ये भी लिख देते हैं, टी बॉडी, देन वी हैव 3 टी 3 टी आर एंड 3 टी डी। inside this we have root t, then we have 10, we have 0.14। एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, इस साइड पे कर दूँ ताकि मेरे को इजी हो जाए, एक ही बार में कर दूँ। मोशा, then 12, 0.17, chips, then we have 20, then we have 0.2। चलो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। आउटपुट इज द सेम वन जो हमारे इधर था, ये और ये सेम है क्या? सेम है ना? समझ में आया कैसे मैं कर रहा हूँ? हाँ, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना गाइस? चलो। हाँ भैया। तो बेसिकली हम टेबल से अभी के टाइम पे प्रैक्टिस कैसे करें, जस्ट जाना इधर, टेबल, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स करना, टेबल इस टेबल 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 प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना, फिर देखना इधर कुछ आएगा। अरे यार नहीं, ये वाला देखो, मैं तुम लोग को देता हूँ एक, अच्छा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने का, एक्सरसाइज, अरे नहीं, एक्सरसाइज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तुम लोग का टास्क मैं कल दूंगा, ठीक है, मैं एक अच्छा सा ढूंढता हूँ तुम लोग के लिए, नहीं तो मैं देखता हूँ यार, चैट जीपीटी से ही मांग लेता हूँ मैं एक अच्छा। Can you give me a good exercise of HTML table by giving some picture for beginners with
row span column span. लेट्स सी ये अगर मेरे को देता है क्या. चलो इसने दे दिया. ये वाला बना के लाना, ठीक है. मैं तुमको शेयर कर दूँ. मैं मार्क भी कर रहा हूँ. ये वाला स्पेस है. जहाँ जहाँ मार्क्ड है वो स्पेस है, ठीक है. चलो ये वाला बना के लाना. बाकी आज के क्लास में कोई तुमको दिक्कत है तो अभी बोल दो. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टुडेस क्लास? नो दादा. आज का क्लास समझ में आया तुम सबको? चलो तो अगले क्लास से पहले आज कंप्लीट करने का आना. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करो. जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको समझ में आएगा. नहीं तो तुमको ही दिक्कत होगा बाद में. जब हम CSS में चले जाएंगे तब मैं ये सब वापस नहीं करवाऊंगा. क्योंकि एक चीज जब हो जाता है यू हैव टू प्रैक्टिस इट. क्योंकि वीडियोस ऑलवेज अवेलेबल है. हाँ मैं एक रिवीजन क्लास लूँगा एट द एंड ऑफ HTML, ताकि CSS से जाने से पहले सबको सब कुछ आता हो. सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाए फिर हम CSS करेंगे. आई विल टेक 2 more class to finish the HTML class. So from next to next week we are going to start the CSS. I will share you the roadmap and each and every day's class schedule, what we are going to learn in that class. तुम सबको अगर आज से पहले तक कुछ दिक्कत है तो अभी बोल सकते हो कि तुमको एग्जैक्टली कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं अभी बोल सकता हूँ तुम्हें. या तुम अगले क्लास में पूछ सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद. कुछ प्रॉब्लम है तुमको अभी या हम क्लास एंड कर दें? इट्स ऑलरेडी लेट. यू कैन से लाइक फास्ट. मैं प्रैक्टिस करी तब बोल. प्रैक्टिस करने के बाद बोलोगे. ठीक है चलो. हम्म. ओके लेट्स एंड दिस टुडेस क्लास. बाय. हम do complete your task before coming from for the next class. Okay, good night.